my dear students, welcome to my channel. If you are new in my channel, so please subscribe my channel and watch all the latest educational video. Hello everyone, how are you? I hope so all of you are good. तो आज हम लोग फिर से एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे. This is very important and this particular chapter is from class 12 and it is a very short poem. ये बहुत ही एक छोटी सी कविता है but very important and this is the only first poem, okay, in your course. As you can see, the name is written here, My Mother at 66. It is written by Kamla Das. Okay. So आज इस पर्टिकुलर पोइट का हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझेंगे. एंड एज आई explain you the stanzas, with that particular I am going to explain you all the poetic devices also, as well as the word meanings also, so that you can learn all the things. Okay, so don't worry, today it will be a very beautiful session and it will be very enjoyable also. Okay, and I hope so you will going to learn all these things. So my dear student, let's move to the first of all we will going to learn about the poetess. Okay, so let's move to the poetess part. As you can see this particular picture, this one, this is Kamla Das. Okay, and actually you know इस पर्टिकुलर कविता में जो है ये कमला दास के बारे में ही है. ओके, कमला दास और उनके मदर के बारे में. ओके, तो सबसे पहले हम लोग कमला दास के बारे में पढ़ेंगे. देन विल मूव टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर, थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम, एंड देन विल कम टू द स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन. ओके, सो दिस आई ऑलवेज यूज्ड टू से, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोग को अच्छी लगी, so please like and share and subscribe my channel so that I can make more and more video for you peoples, because I only used to my target, as I had told you in the first day, that my target is to share knowledge. My target is only to spread the knowledge. So मैं कोशिश करूँगा कि अपने तरफ से मैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शो कर पाऊँ और एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि नेक्स्ट ईयर जो भी एग्जाम होने वाली है उसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना आए. ओके, सो चलिए बातें तो होती रहेगी. लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड्स वेयर यू विल कम टू नो अबाउट कमला दास. एज यू कैन सी दिस पर्टिकुलर लाइन, आई एम हाइलाइटेड इट. Kamla Das 1934 was born in Malabar, Kerala. So she is from southern state. Okay, she is from Kerala. The name of that particular city is Malabar. Okay, this particular state Malabar, I'm highlighting this. Okay, Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. Okay, so she is the first poet of India, you can say, and very famous poet also. Poetess also. Her works are known for their originality, versatility, and indigenous flavor of the soil. So ये जो है एक इनके जितने भी वर्क लिखे हैं, इन्होंने जो भी नॉवेल्स लिखे हैं, जो भी पोएम लिखे हैं, ये इसमें एक ओरिजिनलिटी था. दैट मीन्स देयर इज अ रियलिटी, एक रियल फैक्ट को लेकर वो सारा कविता और सारा नॉवेल्स लिखे हैं. ओके, और आप देखेंगे कि इनके सारे कविता में एक वर्सेटिलिटी है. आप देखिएगा, अस्थिरता नहीं मिलेगा, चंचलता मिलेगी आपको. ओके, फ्लैक्चुएशन मिलेगी. एंड indigenous flavor of the soil. So indigenous means, you know, that is Swadeshi, Desi. That means whatever she used to write, it just belongs to their own country. Okay, एक देशी भाव आपको इनके सारे वर्क में मिलेंगी. Okay, Kamla Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name of Madhava Kuti. This one is very important. आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारे पोएम और नॉवेल्स को लिखे हैं, इंग्लिश में भी और मलयालम लैंग्वेज में भी, बट इनका जो नाम है वो माधवी कुटी के नाम से इन्होंने पब्लिश किया है सारा पोएम एंड नॉवेल्स को. ओके, और इनके कुछ सम ऑफ द नॉवेल्स, यू कैन सी सम ऑफ द वर्क ऑफ इंग्लिश इंक्लूड लाइक नॉवेल्स अल्फाबेट ऑफ लस्ट in 1977, a collection of short stories like Padmavati. Okay, this one, Padmavati, Padmavati the Harlot. The other story is 1992.
इन एडिशन टू हैव 5 बुक्स ऑफ पोएट्री। तो इन ये जो सारे आप चीज देख रहे हैं, तो आप जो सारा चीज यहाँ पर देख रहे हैं, दिस ऑल आर हर ओन वर्क। ओके, ये एक इंग्लिश वर्क का सारा एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है। लाइक दिस ओनली यू विल गेट मैनी ऑफ द स्टोरीज। ओके, शी इज अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स अ कॉम्प्लेक्स subtleties of human relationship in lyrical idioms. My mother at 66 is an example. So आज हम लोग जिस कविता को पढ़ेंगे, आज हम लोग जिस पोएट को पढ़ेंगे, ये एक उन्हीं का एक एग्जाम्पल है। ये जो कविता है, ये उन्होंने एक रिलेशनशिप को शो किया है, बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन मदर्स एंड डॉटर। ओके, तो इस चीज को इस चैप्टर में दर्शाने की कोशिश, इस पोएम में दर्शाने की कोशिश की कि एक बेटी और एक माँ का बीच में, माता के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। ओके, सो टुडे विल गोइंग टू लर्न दिस पर्टिकुलर, टुडे विल गोइंग टू एनालाइज दिस पर्टिकुलर पोएम and then we'll going to understand it, and I will try to teach you in such a way so that you will not going to face any problem in your upcoming exams. कोई भी डाउट नहीं रहेगी, ये मेरा चैलेंज है। और अगर रही भी, so masters is here, you are always welcome to call me. I'll going to give my number also today, and but हर एक समय कॉल मत कीजिएगा। It will be better that if you going to comment in the comment box, or if you can message me in my WhatsApp number. Okay, so चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, and then we'll going to learn about this particular poem. Okay, let's move to the next slide, this one. Okay, so let's move to the theme, or you can say introduction of this particular chapter. What about all this chapter? Let's see. My Mother at 66 is a poem whose author is Kamla Das. We already know about it. हम लोग जान चुके हैं जो इस पर्टिकुलर पोएम की जो पोएटेस है वो है कमला दास। द राइटर इज फेमस फॉर कैप्चरिंग द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन ह्यूमन बींग्स। ये बहुत ही फेमस रह चुके हैं, ठीक है, किस चीज में, ये रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए बिटवीन द ह्यूमन बींग्स, है ना। relations between the daughter and mother, relations between the son and mother, father and son, like this human relationships. Okay, this poem is one of the best example of bonding in humans. So इस particular poem में हम लोग ये इस बात को समझेंगे कि एक between two humans what is the relationship, एक ह्यूमन के साथ दूसरे ह्यूमन का क्या बॉन्डिंग रहता है, ये आज हम लोग इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। ओके, राइट, गॉट इट। ओके, देन especially the bond between the mother and the daughter. So आप देख सकते हैं this particular line, I'm highlighting this, इस particular chapter में हम लोग ये देखेंगे कि स्पेशली एक मदर और एक डॉटर के बीच में क्या बॉन्डिंग रहती है। ओके, एक डॉटर अपने माता के बारे में क्या सोचती है, कितने प्यार करती है, वो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो I hope so this particular introduction is a particular theme is clear. But before going to start this particular stanza wise explanation, I would like to share or give us a very short introduction. Actually ये जो पोएट है ये कमला दास के बारे में है। वो अपने काम से घर आए थे। She is moving to Kochi. Okay, तो वो जब अपने घर से अपने काम की प्लेस में जा रही थी तो वो कार में बैठी हुई थी। ओके, and from there this particular story is started. So you can say this is one of the example of ballad types of poem. Okay, so it is written in the form of story. So let's move ahead. चलिए हम लोग आगे देखते हैं और आगे stanza wise हम लोग समझेंगे कि इस particular poem में क्या लिखा हुआ है। Okay, so let's move to the next slide. So that and ये जो कविता है मैंने इसमें बहुत सारे स्लाइड्स में इसको डिवाइड किया है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बेसिकली इस पर्टिकुलर पोएम में आपको स्टैंजा ठीक तरह से दिखाई नहीं मिलेगी, बट आई हैव डिवाइडेड इट सो दैट इट विल बिकम इजी टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्टैंजा 1 से। आई होप सो ऑल ऑफ यू आर रेडी। सो आप लोग प्लीज 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 समझने का कोशिश कीजिएगा whatever I'm explaining to you. Okay, and I'm going to explain you in a very simple language ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना आए। Okay, let's move ahead. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, तो वो कहाँ जा रहे थे, अपने घर से, वो अपने जॉब प्लेस से या फिर पढ़ाई करने गए उस प्लेस से वो अपने घर आए हुए थे।
अपने माता जी से मीट करने के लिए. अब देन द टाइम हैज केम अगेन व्हेन शी हैव टू गो बैक. So when she was going back to the Cochin, means going back to means she is on the way. वो एयरपोर्ट की ओर जा रही थी, वो कार में बैठी हुई थी, उनके जस्ट पास में ही उनके माताजी भी बैठे हुए थे. तो ये जो इंसिडेंट है, ये लास्ट फ्राइडे की इंसिडेंट है, फ्राइडे मॉर्निंग की इंसिडेंट है. उन्होंने ये बताया वो जा रहे थे और उनके जस्ट बिसाइड में उनका माताजी भी उनके साथ बैठे हुए थे. ओके, फ्यू वर्ड्स आर हियर, इफ यू वांट यू कैन राइट दिस पर्टिकुलर, है ना. इट इज आई एम हाइलाइटिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस पर्टिकुलर लाइक beside mean alongside, then poetic device is also used here, so that I will going to explain it to you, don't worry what are the poetic devices used here. तो चलिए हम लोग अभी इस पर्टिकुलर लाइन में पोएटिक डिवाइसेस को भी देख लेते हैं क्या है. हियर एजोनेंस का यूज हुआ है. हियर वन टाइप ऑफ पोएटिक डिवाइस यूज, दैट इज कॉल्ड एजोनेंस. ओके, चलिए देख लेते हैं व्हाट डू मीन बाय एजोनेंस. हियर वी सी द यूज ऑफ वावल साउंड दैट इज ओ is used. So as I have told you earlier, the repetition of the consonant sound, it is alliterations, and repetition of the vowel sound, that is called assonance. तो आप लोग इस लाइन पर देख सकते हैं, this particular line, I'm highlighting this, wait, I'm highlighting this, yeah, this particular line, to Cochin last Friday morning. So यहाँ पर जो है ओ vowel का repetition हुआ है. Okay, कोचिन में, मॉर्निंग में, टू में. सो यू कैन सी दैट द साउंड ऑफ ओ कॉन्सोनेंट इज रिपीटेड हियर इन दिस पर्टिकुलर लाइन. सो दिस इज कॉल्ड एजोनेंस पोएटिक डिवाइस. ओके, सो इस पर्टिकुलर लाइन में एजोनेंस पोएटिक डिवाइस का यूज हुई है. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड्स. चलिए हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड्स मूव करते हैं, दैट इज 5. ओके, लेट्स मूव अहेड. डोज ओपन माउथ, हर फेस ashen. Here some words are used like ashen, like that of crops, and realize with pain. तो यहाँ पर डोज मतलब होता है नैप लेना, यानी कि झपकी लेना, सोना. ओके, देन ashen that means pale, you can say. ash means you know राख आप समझ सकते हैं, कोई चीज का राख, that is called ash, and ashen means उसके जैसा दिखना. so in a sense you can say pale. okay, then crops means dead body. तो चलिए इसका मतलब हम लोग समझते हैं. Doge open mouth, her face ashen like that of a crops, and realized with pain. तो यहाँ पर कमला दास ने ये बोला कि जब वो जा रहे थे तो उन्होंने वो ये देखी कि उनका जो माता जी है वो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो झपकी ले रहे हैं, सो रहे हैं, और वो जब सो रहे हैं तो उनका जो है मुंह, जो माउथ है वो खुली हुई है. ओके, एंड उनका जो फेस था वो एक पेल टाइप का नजर आ रहा था, मतलब झुर्री पड़ गई थी. ओके, झुर्रियां पड़ गई थी, एक एस जैसा नजर आ रही थी, राग जैसे नजर आ रही थी. ओके, जस्ट एज लाइक अ डेड बॉडी. उनका माता जी को ऐसे लग रहा था कि वो एक डेड बॉडी है, और उनके अंदर में उनके फेस को देखकर जो पेन है वो समझ में आ रही थी किनको, कमला दास को. ओके, so this is all about this particular two lines. यहाँ पर many poetic devices are used, like same in assonance is used here in the lines. Repetitions of o, a, e, this particular vowels are continuously repeated here. You can see that doge open mouth, this is repetitions of o. Then her face ashen, here repetition of a sound, and e sound is also repeated here. So these all are coming under assonance poetic device. Okay, then यहाँ पर simile का भी use हुआ है. I think simile you know, that is comparison of two things with the help of as or like. जब हम लोग दो पर्टिकुलर चीज को कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एज और लाइक, तो वो एक सिमिली पोएटिक डिवाइस होती है. ओके, सो यू कैन सी हियर इट इज यूज हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ आवर क्रॉप्स. तो यहाँ पर जो है उनके मदर का फेस को कंपेयर किया गया है एक डेड बॉडी के साथ, एक एशन के साथ, दैट मीन्स राग के साथ, विद द हेल्प ऑफ लाइक. सो इट इज अ सिमिली पोएटिक डिवाइस. ओके, आई होप सो इट इज क्लियर टू यू. आप लोगों को समझ में आई है? अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो दोबारा देखिए और हमें कमेंट कीजिए अगर आप जिस बात को आपको समझ में नहीं आई है. ओके, आई होप सो इट इज वेरी मच क्लियर टू यू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, दिस वन. That she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children
स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। चलिए इस पर्टिकुलर स्टैंजा, इस लाइंस को हम लोग समझते हैं। तो वो उनका जो पेन था उसमें नजर आ रही थी कि वो एक बुजुर्ग हो चुके थे, वो बूढ़ी हो चुकी थी। ओके, एंड जब उनको ये लगा कि उनके चेहरा एक मतलब राख के जैसे नजर आ रही है, वो बूढ़ी हो चुकी है, उनके चेहरे पर एक पेन है, इससे ये पता लग रहा था कि उनकी माता जी है जो अब बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़ी हो गई हैं। बट वो ये सब जानते हुए अपना माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि वो ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं चाहती थी। ओके, तो शी वांट टू डिस्ट्रैक्ट हर माइंड, और वो उस थॉट को भुला दी। और देन आफ्टर व्हाट हैपेंड, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब जो है वो बाहर देखने लगी, विंडो से बाहर देखने, अपने कार की विंडो से बाहर देखने लगी, जहां पर उनको ये नजर आया ट्री स्प्रिंटिंग। ट्री स्प्रिंटिंग मीन्स हम लोग जब एक किसी भी गाड़ी में बैठकर जाते हैं तो हमें ये लगती है कि जो ट्रीज है वो हमारे बैक साइड में जा रही है, वो क्या हो रही है, मतलब पीछे जा रही है। ओके, सो उनको ये नजर आया कि यंग ट्रीज जो है, यंग ट्रीज मीन्स young trees means just fresh trees. Okay, the fresh trees is just moving very fast, वो fast move कर रही थी। Okay, the merry children spilling out of their homes, और जो है छोटे बच्चे जो है वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। लेट आउट, वो अपने बच्चों जो है अपने घरों से बाहर निकल कर खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसमें बहुत सारे कंट्रास्ट है। व्हाट इज द कंट्रास्ट? एक तो ये जब वो अपने माता जी के बारे में सोच रहे थे जो बूढ़ी हो चुकी है, उनका चेहरा जो इनका जो फेस है वो एक एशन की तरह नजर आ रही है, और उसी के मुकाबले एक फ्रेश चीज उनको दिखाई मिली, दैट इज द फ्रेश ट्रीज एंड द लिटिल चाइल्ड, जो कि बहुत खुश हैं, एनर्जेटिक है, उनके अंदर में एक एनर्जी है, जो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं। सो दिस इज द कंट्रास्ट। ओके, so here some of the words are used here. One poetic device used here, I'm highlighting that, is consonance. Okay, this particular consonance, यहाँ पर दो repetition poetic device use हुई है, three poetic devices use हुई है। I'm highlighting this so that you can understand about this consonance, imagery and repetition। चलिए इस बात को हम लोग समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कॉन्सोनेंस मैंने पहले भी बता चुका है कि जब यूज ऑफ साउंड ऑफ लाइक एस एंड टी, जब रिपीटेशन हो कॉन्सोनेंट साउंड की, नॉट अ कॉन्सोनेंट लेटर। ओके, कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है तो वो हम लोग कॉन्सोनेंस रिपीटेशन, कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस उसे हम लोग कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ एस और टी ये बहुत बार रिपीट हो चुकी है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस। इमेजरी मीन्स आप एक इमेज इमेजिन करते हैं। व्हाट इज इमेजिनेशन हियर? दैट अ पोएट सेज ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैरी चिल्ड्रन स्माइलिंग। पोएट ये एक इमेजिनेशन कर रही है कि जो है बच्चे लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ट्रीज जो है फास्ट मूव कर रही है। सो दिस शी वाज ओनली इमेजिन इन हरसेल्फ दैट अबाउट द चाइल्डहुड डेज एंड अबाउट द ओल्डन एज। ओके, सो ये एक इमेजरी पोएटिक डिवाइस है। रिपीटेशन क्या है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे वर्ड रिपीट हुई है, जस्ट लाइक इन लुक्ड। ओके, और रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस हम लोग उस पोएटिक डिवाइस को बोलते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर लाइन या फिर कई वर्ड्स बार बार रिपीट होती है, उसे हम लोग रिपीटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लुक्ड वर्ड है ये 2 बार रिपीट हुई है, आप देख सकते हैं, दिस वन लुक्ड, आई हैव हाईलाइटेड इट। सो दिस इज अ रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस। सो ओवरऑल आप इस स्टेंजा को, आई होप सो इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। यहाँ पर जो है कमला दास जो है वो अपनी माता जी को देखकर बहुत चिंतित हो गए, और फिर वो अपना माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो बाहर देखें। बाहर जब वो देखें तो वो देख रहे हैं यंग फ्रेश ट्रीज जो है फास्ट मूविंग कर रही है, बच्चे खेल रहे हैं। सो वो लोग बहुत एनर्जेटिक है। सो इन दिस वे शी वांट टू डिस्ट्रैक्ट हर माइंड। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पहुंचते हैं, जिसमें यहाँ पर हम लोग पता चलेगा कि आगे क्या है। ओके, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल। चलिए यहाँ पर बहुत सारा वर्ड यूज हुई है, दैट इज कॉल्ड वैन, अगेन पेल। सो इसका मीनिंग आप देख सकते हैं, वैन मीन्स डीम एंड वीक, बहुत वीक हो जाना। ओके, पेल मीन्स डल एंड कलरलेस। ओके, सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं माय डियर कि यहाँ पर अब जो है वो ऑलरेडी एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। सी रीच टू द एयरपोर्ट। अब जो वो एयरपोर्ट पहुंच गई, आप लोग ये जानते हैं कि एयरपोर्ट
जाने के बाद सिक्योरिटी चेक होता है, सिक्योरिटी चेक पर बोर्डिंग पास मिलता है, तब जाकर वो प्लेन की ओर जाती हैं। वो अब सिक्योरिटी चेक होने के बाद जब वो कुछ दूर आगे बढ़ती हैं, हियर स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वो फिर से टर्न करती है अपने माता जी को देखने के लिए, अपने मदर को देखने के लिए। और वो जब वो मुड़कर जब वो अपने माता जी को देखते हैं तो क्या होती है, उन्हें ये नजर आता है, उनके चेहरे पर एक पेन नजर आता है, एक वीकनेस नजर आती है, एक कलरलेस चेहरा नजर आता है उनके माता जी के चेहरे पर। ओके, so that is only written here. Okay, now let's connect to the next slide so that it is clear to you what happened next. Yes, as late winter's moon and felt that old familiar ache. This is very important, familiar ache. चलिए इसको बारे में भी हम लोग समझेंगे। My childhood fears, but all I said was see you soon, Amma. All I did was smile, smile and smile. स्माइल इज अ वेरी गुड हैबिट, नो। चलिए इस 3 स्माइल्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और इस पर्टिकुलर लाइंस को भी हम लोग समझेंगे। क्या हुआ? इन्होंने फिर से एक कंपैरिजन यहाँ पर की है, एज लेट विंटर्स मून। उनके माता जी का चेहरा वो एक लेट विंटर मून के साथ कंपैरिजन की है। लेट विंटर मून आप देखिएगा कि विंटर के समय मून जो है क्लियर नजर नहीं आती है बिकॉज ऑफ द फॉगी वेदर। ओके, सो जस्ट एज लाइक दिस ओनली, उनके माता जी का फेस भी जो है क्लियर नजर नहीं आ रही थी। बिकॉज वाई? बिकॉज इट इज जस्ट लाइक एन ओल्डन फेस, रिंकल्स आ गई थी। ओके, एंड ये जो है अब जो है ये एक फैमिली, एक मीन्स पेन, एक मतलब क्या होता है? पेन होती है, ठीक है। तो इस यहां पर जो है वो उनको एक जाना पहचाना सा पेन उनके अंदर में फिर से इनिशिएट हो रही थी, दैट इज चाइल्डहुड पेन। व्हाट इज द चाइल्डहुड पेन? ये चाइल्डहुड में शायद सेम टाइप ऑफ इंसिडेंट शी हैड फेस्ड, दैट इज किसी भी कारण, किसी भी रीजन से वो कमला प्रसाद और अपने माता जी जो है सेपरेट हो गए थे। मे बी बिकॉज ऑफ द जॉब, मे बी बिकॉज ऑफ द फर्दर स्टडी, मे बी बिकॉज ऑफ द हायर स्टडी। तो अभी जो वो अब घर आए, घर से अब लौट कर वो अपने काम की ओर जा रहे थे, वो सेम फियर उनको महसूस हुई जो उनके वो बचपन में महसूस हुई थी। उनको ये डर था कि जो है अब मैं अपने माता जी को फिर से देख पाऊंगा या नहीं। उन्हें यह डर था कि शायद वो अब डाई, मतलब शी विल डाई। ओके, वो शायद मर सकती हैं, उनको ये डर था। ओके, सो दिस पर्टिकुलर फियर शी वाज फेसिंग एट दैट टाइम, ठीक है। बट उन्होंने इस डर को अपने अंदर दबाते हुए उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया सी यू सून। उन्होंने अपने माता जी को बोला सी यू सून, फिर से मिलेंगे मम्मी। ओके, एंड यू नो इन साउथ इंडियंस दे यूज टू कॉल मदर अम्मा। सो उन्होंने ये बोला सी यू सून अम्मा, फिर से मिलेंगे अम्मा। एंड ऑल डिड आई वाज ए स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। और फिर उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ 3 बार स्माइल 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 की। ओके, सो व्हाट इज द एग्जैक्टली सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर 3 स्माइल, स्माइल स्माइल एंड स्माइल? चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इस 3 स्माइल का अलग मीनिंग है। पहला स्माइल जो है वो ये पहला स्माइल से वो ये दर्शा रहे हैं कि जो है वो पहले तो मतलब कि वो स्माइल इसलिए की ताकि वो ये दर्शा रहे हैं कि जो फियर है उनके अंदर में, ठीक है, एक फियर है कि वो आप अपने माता जी से मिल नहीं पाएंगे। ओके, देन सेकंड स्माइल शोज द ब्रेवनेस, ओके, करेजियसनेस ऑफ द पोएटेस। सेकंड स्माइल में वो ये दर्शा रहे हैं कि जो है वो एक अपने डर को अंदर में छिपाते हुए बाय हाइडिंग हर फियर उन्होंने स्माइल किया, ठीक है। एंड द थर्ड स्माइल इज दैट, थर्ड बार जब उन्होंने स्माइल किया वो ये दर्शाना चाह रहे थे कि होपिंग टू मीट विथ हर मदर अगेन। वो एक आशा लेकर स्माइल की कि शायद नेक्स्ट टाइम वो फिर से अपने मम्मी के साथ मिलेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 स्माइल स्माइल स्माइल। अगर क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से इस बात को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वेरी ब्यूटीफुल पोएम, नो। सो दिस व्हाट इज द थिंग्स वी आर गेटिंग हियर? द थिंग इज गेटिंग हियर दैट हाउ अ पर्टिकुलर डॉटर इज कंसर्न अबाउट हर मदर इन ओल्डन डेज, ठीक है। एक बेटी जो है अपने माता जी के, मम्मी के, अपने मदर के बारे में कितनी कंसर्न रहती है, कितना चिंता करती है, इस बात को, इस बॉन्डिंग को इस पर्टिकुलर पोएम में कमला दास ने एक्सप्रेस करने की कोशिश की है और एक्सप्रेस की है।
सो आई होप सो इट इज वेरी क्लियर टू यू नाउ। चलिए कुछ पोएटिक डिवाइसेस है यहाँ पर। सिमिली का यूज, स्माइल जो है एक रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस है। स्माइल 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 3 टाइम्स रिपीट हुई है, इट इज वेरी क्लियर। राइमिंग स्कीम जो है यहाँ पर कोई राइमिंग स्कीम को फॉलो नहीं किया गया है, ठीक है। इट इज रिटन इन फ्री वर्ड्स। फ्री वर्ड्स मतलब जिसमें कोई राइमिंग स्कीम को, पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम को फॉलो नहीं किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्री वर्ड्स। ओके, देन सिमिली का यूज किया गया है यहाँ पर। द फेस इज कंपेयर्ड विद अ लेट विंटर। ओके, एज का यूज हुआ है, देख सकते हैं हम, एज अ लेट विंटर मून। सो व्हेनेवर इट इज कंपैरिजन विद द हेल्प ऑफ लाइक एन एज, दैट इज सिमिली, ठीक है। और यहाँ पर जो है मून बोथ आर डल एंड लाइफलेस, यूज ऑफ एज, सो दिस इज विंटर सून। मेटाफर का भी यहाँ पर यूज हुआ है। ओके, मेटाफर मीन्स कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स विदाउट यूजिंग एज और लाइक। ओके, सो ये सारा पोएटिक डिवाइस इस पर्टिकुलर चैप्टर में यूज हुई है। सो आशा करता हूं कि आप इस पर्टिकुलर चैप्टर को समझ पाए हैं। सो देन ऑल्सो if you are getting any problem, you are very much free to ask me the questions. I will surely help you. You no need to take any tension. But मुझे ये confident है कि आप अब इस पर्टिकुलर पोएम में कोई प्रॉब्लम आप फेस नहीं करेंगे, because I have explained all the things or all the lines part by part. आप इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन को एक बार फिर से देखें, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, so thank you for watching. And again and again and again I always used to repeat this, if you like my video, please subscribe it so that I can upload more and more video. मैं क्लास 12 की और वीडियो अपलोड करूंगा, डोंट वरी। मैं चैप्टर एक्सप्लेन भी करूंगा। I will going to upload the writing section classes, writing topics also, grammatical topics also, all things, don't worry, part by part I will clear your all doubts. आपके एग्जाम से पहले मैं सारा चीज का इंग्लिश से प्रिपरेशन करा दूंगा। यू नो नीड टू टेक एनी टेंशन बिकॉज मास्टर जी इज हियर। ओके, सो इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब इट। ओके, सो फॉर दिस टाइम टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। गुड नाइट, बाय।